مہنگائی میں کمی کا اعتراف، شرح سود میں مزید 2% کی کمی۔ وزیراعظم کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم۔ پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال کے جائزے، وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق سمیت اہم امور پر فیصلوں کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل صبح 11 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں طلب۔ پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ سابق دور میں ایک وفاقی وزیر نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے کو ایک بیان سے نقصان پہنچایا گیا۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں اب یورپی یونین کے آڈٹ کے بعد روٹ بحال ہو گئے ہیں۔ انگلینڈ کی آڈٹ ٹیم بھی جلد پاکستان آ رہی ہے اور امید ہے وہ روٹ بھی بحال ہو جائے گا۔ امید ہے پی آئی اے منافع بخش ایئر لائنز بن جائے گی۔ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں، ملکی سلامتی داؤ پر لگانے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ڈیپٹی اسپیکر میر غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال، کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بدلے، پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کے حالات ہر سطح پر خراب ہوئے۔ ضلع کرم میں لاشیں گر رہی تھیں اور صوبے کا سربراہ اسلام آباد پر لشکر کشی کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ موقع پر ہوتے تو حالات یہ نہ ہوتے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب، پی ٹی آئی دور میں بند ہونے والی یورپ کے لیے پاکستان ایئر لائن کی پروازوں کی بحالی کی خوشخبری بھی سنائی، کہا پروازیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ تحریک انصاف کو این آر او نہیں ملے گا، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت صوبے میں امن و امان قائم کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ کرم میں پرتشدد واقعات، کے پی حکومت نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہوں گے۔ ہماری لچک کو حکومت کمزوری سمجھ رہی ہے، اگر مذاکراتی کمیٹی نہ بنتی تو سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہوتی۔ لیڈرشپ نے بڑے فیصلے سے پہلے مذاکرات کا مشورہ دیا تھا، اب اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو شاید بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کسی نئے لاہے عمل کا اعلان ہو جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی کی ویڈیو بیان میں حکومت کو وارننگ، کہا بچکانہ رویے سے ہونے والے نقصان کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے ایک بار پھر مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ ملک کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر جرگہ بلانے پر غور کر رہے ہیں۔ احتجاج سے متعلق آئندہ کے لاہے عمل پر غور کیا جائے گا۔ فیصل وابڈا بھی پیش گوئیاں کرنے لگے، کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی، میں یہ سب ہوتا ہوا بہت جلد دیکھ رہا ہوں۔ آئندہ چند دنوں میں بلاول کی وزیراعظم سے ملاقات ہوگی، مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ فیصل وابڈا کی ایک اور پیش گوئی۔ قبر ایک اور بندے دو، ایک نے اندر جانا ہے، حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات سے نکلنا کچھ نہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا دعویٰ۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے، بانی پی ٹی آئی سے لمبی ملاقات ہوئی، سابق وزیر اعظم نے مجھ سے کہا کہ میں اور آپ ایک ہیں، ہمارا ایک اور ایک دو نہیں 11 ہوتا ہے، ہمارا 11 نمبر بہتری کا نمبر ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 26ویں آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی اور نئے ججز کی تقرری روکنے کی استدعا کر دی۔ سابق وزیر اعظم کے اٹارنی جنرل نے درخواست بیرسٹر موئز جعفری کے توسط سے دائر کی ہے۔ درخواست میں وفاق، حکومت سندھ، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔
26वीं तरमीम वाज़े तौर पर आइन और अदलिया का कत्ल। हमारी वाज़े कोशिश है कि 26वीं तरमीम का खात्मा हो। 26वीं आइनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने। तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस के सामने ये केस नहीं सुना जाएगा। मिसाल मौजूद है कि 18वीं तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट ने केस सुना। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान की लाहौर में सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सो मोटो की पावर वापस नहीं ले सकते। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहा, मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्दी काम करने की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों में हमारा किरदार बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ ज़रख़े ज़मीन और बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है, मगर हम इस शोबे में भारत से कभी पीछे नहीं हटे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी में मौसमियाती तब्दीली पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबों में तहकीक की ज़रूरत है ताकि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला जा सके। हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। विफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल समेत बैरिस्टर अली जफर, फारूक एच नाइक और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन की शिरकत। कमेटी ने रूल्स की मंजूरी देकर हतमी मंजूरी के लिए मुतल्लिका 32 रुकनी जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिया। 21 दिसंबर को हतमी मंजूरी दी जाएगी। GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अफजल अली शाह की अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। ATC जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर रोक दिया गया। मुलाकात से मुतालिक कोई इत्तला नहीं। जेल अमले ने अली अमीन गंडापुर को आगाह कर दिया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का काफिला अडियाला जेल से गोरखपुर की तरफ रवाना हो गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल कहता है, आपको बानी तहरीक इंसाफ से मिलने की इजाजत नहीं। फॉर्म 45 के वज़ीर आला की तस्दीक फॉर्म 47 की जारी वज़ीर आला मरीम नवाज के हुक्म पर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ हुकूमती इक़दामात पर बरहम। कहते हैं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। 26वीं तरमीम के बाद जाली हुकूमत अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रही है। डी चौक एहतजाज केस, गिरफ्तार 188 मुल्जिमान अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 61 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी कर दिया। बरी मुल्जिमान की हथकड़ी खोली जाए, दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। डिस्चार्ज किसी मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। अदालत का पुलिस को सख्ती से हुक्म। NA 241 में मुबैना धांधली का केस, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने PTI के उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी ट्राइब्यूनल के जज को तब्दील करने से रोकने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 30 दिसंबर तक जवाब तलब। साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म, इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉकयार्ड हमला केस में सजाए मौत पाने वाले नेवी के 5 साबिक अफसरान की दस्तावेजात के हुसूल की दरख्वास्त निपटा दी। एहलकारों को कोर्ट मार्शल के जरिए सजाए मौत सुनाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अमल दरामद रोक रखा था। पंजाब में सरमायाकारी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र जाएंगे। कायरा में D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मालियाती तरक्की के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराएंगे। समिट का मौजू नौजवानों पर सरमायाकारी करना और SMAs को सपोर्ट करना है। इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वज़ीर-ए-आज़म पेश करेंगे। पोलियो वायरस के दोबारा फैलाव को रोकने का मिशन। मुल्क भर के 143 अजला में हफ्त रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत का वालिदैन से पोलियो के खिलाफ मुत्तहिद होकर अपने बच्चों को वैक्सीनेशन यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रवां साल सिंध में 19 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे की कोशिशों को मजीद तेज़ करना होगा। आवाम से दरख्वास्त है कि इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत का साथ दें। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग। इंसदादे पोलियो मुहिम पर मामूर पुलिस एहलकार और एक पोलियो वर्कर शहीद। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके शकरखेल में भी पोलियो टीम पर हमला हुआ। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया, पोलियो वर्कर जख्मी हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पोलियो टीम पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी की पोलियो टीमों पर हमलों की शदीद मजम्मत। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ है। हुकाम को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। तशद्दुद पोलियो के खिलाफ जिद्दोजहद को नहीं रोक सकता। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। इस सानहे ने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। सफाक दहशतगर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। 150 से ज्यादा तलबा समेत प्रिंसिपल शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का शहदा APS को खिराज अकीदत। आसिफ जरदारी ने कहा, सानिया APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और ख्वारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द 144 मासूम जानों को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर गए। वक्त इस सानहे और इन मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर का सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के शोधा को खिराज अकीदत। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। APS सानहे ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से नेशनल एक्शन प्लान पर मौसल अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। सानिया APS के 10 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर वफाकी हुकूमत से हेलीकॉप्टर का मुतालबा। महकमा दाखिला सिंध का वफाकी वज़ारत दाखिला को ख़त हेलीकॉप्टर देने की दरख्वास्त कर दी। बरसी के मौके पर सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर नज़र रखने के लिए फ़िज़ाई निगरानी ज़रूरी है। पंजाब असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल पर अपोजिशन लीडर अहमद खान बिछड़ ने एतराज़ उठा दिया। बिल की मंजूरी से अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 कर दी गई है। वज़ारत मजहबी उमूर का कल हज दरख्वास्तों की वसूली बंद करने का ऐलान। बैंकों में कल हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन होगा। 17 दिसंबर तक मौसूल तमाम दरख्वास्तें कामयाब तस्वुर की जाएंगी। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 19 ता 27 दिसंबर नामजद बैंकों में जमा होगी।
पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 255 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की नई कीमत 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर की कमी के बाद 148 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत 278 रुपये 17 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 5 पैसे बढ़कर 269 रुपये 14 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1887 पॉइंट इजाफे के साथ 1,16,159 पॉइंट पर बंद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त की अहम ज़रूरत है। सेनेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम से खिताब। कहा, इंटेलिजेंस टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की के लिए कानून साजी के लिए हाजिर है। टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान की मईशत में अहम तरीन पहलू है। IT की तरबियत हासिल करने वाले नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में खिताब। कहती हैं, हुकूमत IT के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवानों को IT की तालीम देकर रोज़गार के नए मौक़ों के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। हम VPN ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है तो हमारे पास जवाब नहीं होता। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हफीजुर रहमान की पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट 2024 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में वजाहत। कहते हैं कि ये वो ज़माना नहीं, हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाएगा, सब कुछ मंजर आम पर आ जाता है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बर्फानी पहाड़ों पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं ने कराची का मौसम मजीद सख्त कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर आइंदा 2 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। सिहोनी रियासत इजराइल दुनिया भर में सहाफ़ियों का सबसे बड़ा कातिल करार। रवा साल दुनिया भर में 54 सहाफ़ी कत्ल, 550 गिरफ्तार हुए। मकतूल सहाफ़ियों में से 30% गजा में इजरायली फौज के हाथों मारे गए, जिनमें ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल। 41 को कैद किया गया। सहाफ़ियों के कत्ल, गिरफ्तारी, अगवा और लापता होने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा तशवीशनाक करार। पेरिस में कायम तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में इंकशाफात। पाकिस्तान रेड बॉल